Hi, all. Can you see my screen? Yes. Okay. So, Yes. first let me introduce myself. My name is Rahul, and I have around 12 plus year of experience in telecom domain. And I have delivered many individual and corporate training sessions. So I will walk through you from some basic concept of what is protocol test, what is 5G requirement, and how we can like basic aspect of 5G, how we can change our field from to 5G. The topic we will discuss. So and then like basic overview of syllabus, which we will cover in detail in our course. So these things we will discuss. So in between, if anyone has some doubt, so we can discuss in detail. Okay, you can stop me anywhere in to discuss this thing. Okay. So yeah. Just take general introduction to joiner. Okay. Yeah. Okay. So I think all of you are working from telecom domain only, right? Yes.
So, like, could you please Yes. give me some basic detail here? How much experience you have in which area? Working? Why are you here? Like bit about you. Yeah, someone with name telecom professional. I am Ajay Singh. I am looking after wireline switch, having 17 years experience, but I have no idea about bold TLT like 5G. Oh, okay, That's why I want interested to join this. okay, good. Definitely will. Good idea here, Mr. Pandey. Hello, this is Kagish here. I have 12 years of work experience in RF KPI planning and optimization. Okay, okay, Krish, thank you. Deepak. Deepak is our HR admin. Okay, 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 okay. Sayan. Himanshu. Himanshu Soni here. I'm working with Vodafone Idea Limited as a transmission engineer and looking for growth in like to know more about 5G. I'm looking for job in 5G technology. Okay. Next, anyone? Just your basic introduction, guys. Yeah, my name is Anupam Gupta. I have a 10-year experience. Mm-hmm. I am working the Reliance Jio for the RF optimization engineer. Thank you. Hi, this is Sanjeev. I have a total experience of 7 years as a project coordinator, project engineer. Actually, I was worked with like site installation and everything. I don't have basic knowledge of this 5G and all this, so I want to clear about all my basic so that I can pursue further my career Okay. of this 5G protocol. Yes, Sanjeev, it's like good time to learn these things. Lots of vacancy we having in market. Yes, that's why it's a boom. It's a right now this technology is very boom technology, and Yes. in the future, I think whole thing is working on protocol. Yeah, definitely we will get. Yeah, sure. Next, anyone? Hello everyone, Nishan this side, Nishan Sakalle. Like I've got 11 years of experience in RAN and as well as RF. I'm taking care of both the things. And for me, protocol testing will be an extra advantage in my resume and my career as well. So looking forward to the same. Okay, thank you, Nishan. Shashank. Yeah, hello, my name is Bharat Viltare. Yeah, hi. I have 17 years of experience in RF and deployment testing. So I'm looking for the growth. Okay, thank you, Bharat. Next, anyone? Shashank, I think recently joined. Hi, this is Brajesh Verma from Indore, Madhya Pradesh. I'm working with Reliance Jio and having 13 years of experience working with many vendors and operators. Presently working in RF planning and optimization field. Want to grow my skills and want to change profile with new profile and challenge work. That's why I want to join this. Okay, just thank you. Okay, anyone? Next. Okay, so let's start. So first, guys, let's understand that what is protocol and what is about this thing. So as you are working in network side or in telecom domain only, but in different area, so you must aware of this thing, like what is G Node B and these basic
nodes of our network. So first, let me explain. When all you are aware, but let me introduce. Like network is interconnection of four more nodes via some transmission media. So in like LT we had node B, MME, and these node we had. But same like in 5G we have UE, G node B, and AMF. AMF you can compare with MME. So same like for example, this is my UE. UE is nothing but my user equipment, my hand. Then we have RAN side. Suppose this is my G node B, or you can E node B in case of LT. Okay. Then we have one controller. You can say in case of LT we had MME, and now we have AMF. Okay. So to communicate one node to another node, thing, and we have multiple layers at the node to communicate with these layer. We need certain protocol, and those protocol, like in upcoming slide, we will see like what all protocol we have. So how protocol communicate with each other and how one node communicate with each other. These things we will see. These things we will learn. Protocol, how one node communicate with each other, and how one layer with node process going on, and how these according to call flow these things will take place. These things we will learn. This is all about protocol testing. Okay. This is the idea in which we need these protocol. Okay. So next slide we will see what all protocol we have in case of 5G, and what is the basic difference between LT and 5G. This thing we will see. Okay. So like same I have explained. Protocol is standard set of node that allow node in network to communicate. Means how these communicate with each other, and according to process how one layer will communicate with other layer. In this process we require some protocol. That is basically protocol testing. We check like this communication is proper or not, the behavior of these layers is proper or not. These things we will check. Okay. Like what type of testing we will do in general day to day, that thing also we will see in slide. Okay. So next question was that we know like what is protocol, that who define this protocol, who is responsible for this protocol. Okay. So we have different bodies like 3GPP, ORAN Alliance, ITU, RFC, and IEEE. So in case of LT and 5G, 3GPP is responsible for defining this protocol. So again, what is 3GPP? Again, next question, what is this 3GPP? Okay. So in this organization or in this group, we have different member from different background. Like different background means from some leading organizations like this, Nokia, Samsung, Qualcomm. Some people from research institute like for this IIT Hyderabad, IIT Kanpur. These are closely working to develop our 5G testing beds. So from some different government bodies, DOT, Department of Telecommunication. So these people come together on one group, that is third generation partnership project, and these people research a lot to define this protocol. So we always follow 3GPP spec to refer any protocol detail, or to refer any like in this area or in this case what should be the behavior of any entity. So this is the basic detail. Okay. समझ में आया सबको what is protocol? ठीक है, कोई डाउट किसी को इतने से एरिया में? नो. ठीक है. ओके. इस प्रोटोकॉल बेसिकली अगर एक बहुत ही रफ लैंग्वेज में हम समझ, तो नोड है हमारे पास में, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं उसके लिए कुछ रूल डिफाइन है हमारे पास में. ये इस रूल के थ्रू, इस के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे. वन थिंग, अदर थिंग, इंटरनल प्रोसेस इनकी कैसे होगी. ठीक है, इसके लिए हमारे पास में कुछ ऑलरेडी डिफाइंड रूल है. ठीक है, तो हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन, प्रोटोकॉल डिफाइन कौन करता है. हमारे पास में एक ग्रुप है 3GPP. इन केस ऑफ ये 4G और 5G हम बात करें तो हमारे पास में 3GPP है, हु डिफाइंस दिस प्रोटोकॉल. देन नेक्स्ट
3GPP मीन्स क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, मीन्स 3GPP क्या है? जब वर्ड सुनते हैं 3GPP, तो 3GPP एक ग्रुप है, ठीक है? ग्रुप किस किस का है? लीडिंग कंपनीज का, देन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, देन गवर्नमेंट बॉडीज का, मिला के ये एक ग्रुप, ठीक है, जो ये प्रोटोकॉल वगैरह डिफाइन करता है। किस प्रोटोकॉल में क्या है, नई नई रिसर्च हो रही है, ठीक है, तो ये रिसर्च कौन कर रहा है? ठीक है, 3GPP मेंबर्स कर रहे हैं बेसिकली। अगर आपने इंडिया में भी सुना हो कि IIT कानपुर, IIT हैदराबाद 5G टेस्टिंग सूट्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, डिफरेंट सीरीज टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब IIT कानपुर वगैरह 3GPP का पार्ट है, ठीक है, तो वो सब ये रिसर्च इंस्टीट्यूट 3GPP का पार्ट है। तो ये बेसिकली अपना एक बेसिक ओवरव्यू है। सब बार बार सुन रहे हैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग, मार्केट में प्रोटोकॉल टेस्टिंग, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोटोकॉल होता क्या है, ठीक है, देन हम देखेंगे प्रोटोकॉल टेस्टिंग में हम करेंगे क्या, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होना जरूरी है। देन नेक्स्ट, दिस इज लाइक बेसिक रिप्रेजेंटेशन evolution of next generation. Okay, so now we are working here. So you can see in every 10 year we get one new generation with some enhanced feature. Like for example, in case of 5G we get low latency, high data throughput capacity, and machine to machine type communication. Like in as compared to 3G to 4G, we get like cloud and IP activity, like IMS introduced here. We use IMS VoLTE-core. This thing introduced with LT. So you can say in every next generation, we get some extra enhanced feature in every new release or in every new technology. Okay. So here we will see what all feature or what all requirements we have in case of 5G. Okay. So these are some basic requirements. First one is enhanced mobile broadband, means high data throughput. Okay. Second one is low latency. Okay. Reliable low latency communication, means latency should be very less in case of 5G communication. So what we can do, whenever this, suppose take one example, this one, self-driving car. So here we have two cars, for example, and they both are working on autopilot mode or some self-driven car. So they communicate with each other help of some protocol, okay, that is known as and V2X, means vehicle to X, means vehicle to anything. Okay, this is V2X technology. Okay, so latency should be very less in this communication, otherwise the result will be very means anything like accident or these things may take place. Okay, so that's why here latency should be very less. So that's why we have one important feature or one important requirement, ultra reliable low latency. Okay, and next, where we can use these things, suppose for example remotely and do these medical surgeries, all these things, means someone from here India to can do the surgery from any other remote place, one city to another city. So at that time also we need very low latency to perform this type of task. Okay, that's why we are working on this thing. In case of 5G, we are targeting very low latency, around 1 or 2 seconds. Okay, but in case of 5G, target was I think 20 milliseconds, but somewhere like 30 milliseconds we get able to implement. Okay, so now with the help of mobile broadband, high mobile data throughput, like this thing, UHD videos, streaming, CloudWare, this thing, VR type of thing, these thing we can to do with the help of high data throughput. Okay, then last one is MMTC. MMTC means massive machine type communication. So in that, what we are targeting is smart cities, smart home and smart building. These things nowadays, like you heard, like these devices we have like Alexa and all these things, they need some communication. Okay,
So on this thing we are working in 5G into machine communication. Suppose very sensor we are developing, many sensor. Suppose approach some house and lighting and all these doors operate can operate automatically. So these thing on this thing we are working on in case of 5G. Means we are able to do these such things with the help of 5G. So these three are basic requirement of 5G. These three. And mobile throughput means mobile broadband. Second one low latency, and last one machine to machine type communication. Any doubt, guys, here? No. Thank you. So there are some like basic difference here. I want to highlight something. Okay. So if you are aware, if not aware, then let me explain. In LTE, subcarrier spacing only 50 kilohertz. Okay. If you are not aware, then no problem. Okay. Only 15 kilohertz subcarrier spacing we had in case of 4G. But in case of 5G, we had multiple subcarrier spacing. Or you are aware with LTE at least? Anyone? Yeah. Okay. ओके सो जिसको पता कोई बात नहीं, मैं जस्ट एक हाईलाइट करने की ट्राई कर रहा था यहाँ पे कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन LTE and 5G. So in case of LTE we had only one subcarrier spacing, okay, but in case of 5G we have multiple subcarrier spacing, okay, like 50, 30 kilohertz, 60 kilohertz, and like up to 240 kilohertz, and then accordingly we have domain resources like symbol length, clock duration, subframe. So these things will in case of different numerology. So this is change is known as scalable numerology. Okay, and this is like more basic thing. In case of 5G, we have two type of implementation. Okay, SA and SA. Okay, so what is difference between these two? Non-standalone and standalone. Non-standalone means we are, so this is my 5G node, this is my LTE node, and this is, suppose in non-standalone means we are using G with LTE node. Okay, that is means NSA, non-standalone mode. But in case of standalone, we are just implementing 5G mode individually. Okay, that is the main difference. So we can implement this, or we can deploy real time. So these are some different type. So first, see this one. This is the thing like LTE with EPC. EPC means 4G core. This is the option one which we are following in case of now in case of LTE means we have LTE node and deploy with LTE core. That is option one. Okay, then what option two? We have deployed NR with 5G core. That is option two. What is option 5? LTE with 5G core. What is the difference between these two? This one. Core is same, 5G core, RAN is different. Means we are using E node B, and here we are using G node B. Okay. E node B in case of LTE, G node B in case of 5G. So that is the basic difference between these two. And now if I compare all these things with NSA mode, in NSA mode we have LTE and R. These two means first one, second one, these two are connected with core network. Okay, so this one is primary cell, this one is secondary cell, and both are connected with some core network. Okay, so now in case of option 3,
primary is LT, secondary is NR. Okay. Then in case of option 4, primary is NR, secondary is LT, and both are connected with 5G core. Here we have LT core, here we have 5G core. Okay. Then next, option 7, when these many options we have to deploy our 5G in real time. Okay. In general, like for case of like this one, standalone, people are following or an operator are following the option 2, and in case of NSA, option 3. So 2 and 3 as most adopted options in case of NSA or SA. Okay. Then what is the difference between these option 4 and option 5? Option 7, sorry. Here primary node is NR and here primary node is LT. Okay. So I think I have one table also to explain. So here like these many options we have, and what is master RAT means primary RAT, then master, then secondary RAT. So here you can see, you can compare as well. Like in this one 3, 4, in 3 we have A primary node, in 3 we have LT primary node, this one, and secondary node NR. In case of 4G, sorry, option 4, we have primary NR node, secondary LT node. Primary NR node, secondary LT node. And this is the term which we use to define this or represent this. Like option 1 is only for LT, then ENDC is DC means E ultra NR dual carrier. Okay. Then same only in case of SA, only NR node we have, that's why NR, then NEDC, NR means first term is N, okay, and master node is NR, and secondary is LT, then secondary node is LT, okay, NEDC. Okay. Any doubt guys? कुछ किसी को पूछना हो, कोई doubt? Can you give some brief about NR? Okay. What? Hello. Yes. Can you give us some introduction about NR? NR means brief about 5G. That's only we are discussing. How we are doing, what is the requirement of NR. This thing only we are discussing. Just next page में जाने. इस पे एक है ना ENDC, it is for option 3 and it is option 4 for NEDC. Yeah. तो इसमें थोड़ा just confusion था. एक second. Right. ठीक है. Option 3 and option 4, right? 4. Yeah. Okay. Here also we can see. 1 second. This is option 3 and this is option 4. If you see option 3, we have primary node as LT. Okay. Then first one is LT. Then secondary node is NR. Then secondary node is NR. Then next representation is dual carrier. Okay. Then this one primary node is N, secondary node is E, and dual carrier. Okay. The same thing. Okay. ENDC, NEDC. And NEDC. ENDC. Dual carrier. Yeah. Means dual carrier means we are using in NSA mode. NSA mode and SM. NSA mode, LT and both. Yes, in NSA mode you can see 2 node we are using. First is master node, then second one is secondary node. Master, secondary, master and secondary. Then we have change in this one we are using EPC, and same if you compare these 2 nodes, same repeated here as well. Okay, but if we are using EPC, and here we are using 5G. 5G core. Okay. So that's why different deployment option we have. How we deploy, this is like up to network. So in general, nowadays we are using option 3 for NSA and option 2 for SA. Okay, because like here you can say no use to deploy 5G core with LE, like as we have limited
basically used for the option 2 and option 3. Yeah. Essay for in option general. 2 in general. Yeah, in general. Now we are on these two options only. Essay for option 2 and an essay for option 3. Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you. Then this is basically our purple stack. Okay. So if you are aware, so first let me explain. So two type of tunneling we have. First one is user plane, then control plane. Okay. User plane and control plane. Okay. So same as LT, in LT we have MME. If you are able to connect, in LT we have MME for control plane and SGW and PGW, serving gateway and PDN gateway we have for user plane. Same in case of 5G, we have UPF for user plane. The full form is user plane function, and same AMF. This AMF same responsibility as MME. Okay, you can compare that this AMF MME in case of L. Okay, so MME is responsible for control plane, then UPF is responsible for user plane. Okay, so if you compare this user plane diagram or user plane here, this one, so one new layer introduced in case of 5G, this HDAP. Okay, rest thing here, this one and this one, 5 layer. These are same. If we compare with LT, responsibility is changed in case of 5G, but rest architecture is same. This is my L1. This is my L2. Hello. Sorry, Yeah. sorry to interrupt you in this call during between. No, just Actually, मुझे एक छोटा सिंपल डाउट है, मे बी छोटा है. आप आराम से पूछो. कोई एक्चुअली ये यूज क्या है, हम लोग उसको कहाँ यूज करते हैं, और इट इज लिमिटेड टू ओनली टेलीकॉम इंडस्ट्री और इट इज लिमिटेड टू टेलीकॉम प्लस आईटी इंडस्ट्री? ओके, ठीक है. अच्छा, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए अपने डाउट को, मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, ठीक है. आपका बहुत इम्पोर्टेंट, तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको डिटेल में. ठीक है, बस अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि ऐसे ये कुछ ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ, फाई मैक आरएल, एक न्यू लेयर इंट्रोड्यूस हुई है, मैं बोल रहा हूँ इन केस ऑफ 5G. सो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास में. ठीक है, जो हम यूज, मैं वर्ड बार बार पीछे बता रहा था आपको कि प्रोटोकॉल है, होता क्या है वो हमने देखा. देन प्रोटोकॉल है कौन कौन से, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, देन ये कंट्रोल प्लेन है, सॉरी ये यूजर प्लेन है. कंट्रोल प्लेन के केस में हमारे पास में 2 प्रोटोकॉल एक्स्ट्रा है. दिस इज माई L3, दिस इज माई L2, दिस इज माई L1. ठीक है, ये अलग अलग है. देन AMF के केस में सिर्फ एक लेयर है. लेयर क्यों है? क्योंकि ये कंट्रोल करने के काम है. राइट, सारी जो एक्टिविटी है कंट्रोल कौन करता है? AMF करता है. ठीक है, अब मैं मतलब ये बोलना चाह रहे हो 5G में मेरा एक लेयर होते जा रहा है एज कम्पेयर टू 4G? नहीं, ज्यादा है, एक लेयर ज्यादा है ये वाला, बाकी सब सेम है. रेस्टिबिलिटी इधर उधर हुई है. ओके, ठीक है, ये जो येलो में हाईलाइटेड है ये लेयर 5G के केस में ऐड हुई है, SDAP. ठीक है, अब बेसिक बात करते हैं. शायद काफी लोगों को ये डाउट होगा कि प्रोटोकॉल होता क्या है. सपोज ये यूई मींस यूजर इक्विपमेंट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ यूजर इक्विपमेंट. देन मैं यहाँ बना रहा हूँ मेरा, दिस इज माई G नोड P. ठीक है, रेस्ट आगे नोड है, हम छोड़ करते हैं, एक बार करते हैं. ठीक है, अब सपोज मेरा ये यूई पावर ऑन हुआ. ठीक है, पावर ऑन हुआ, पावर ऑन आपने एक सिम इंसर्ट की और यूई आपने वो कर दिया, स्विच ऑन कर लिया. ठीक है, अब ये स्विच ऑन करने के बाद में आपके डिवाइस कि इसको कोई नेट एक्सेस करना है.
राइट। तो बहुत ही मैं ज़्यादा डिटेल, ठीक है, बस आपको छोटा छोटा बहुत ही बेसिक ओवरव्यू देता हूँ ताकि एक पिक्चर हो। ऐसे जो ये वाली लेयर है नेस्ट लेयर, ठीक है। अब डिवाइस ऑन हुआ, यहाँ पे मैंने एक डिवाइस था मेरा जो ऑन हुआ, ठीक है। अब होते ही इसके पास में इसकी मेमोरी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एनवीसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। देन आपने एक सिम किया इसमें, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास में हैं। ये दो एंटिटी कहाँ है आपके पास में? यूई में, राइट। एनवी में आपके पास में क्या डिटेल है? बैंड्स की। अब जब भी आप कोई फोन लेते हो तो आप ये चेक करते हो ना कौन कौन सा बैंड है, कौन बैंड सपोर्ट करता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। मतलब नहीं भी देखते हैं तो आप एक बार देखना फोन के स्पेसिफिकेशन में, वहाँ पे हाईलाइटेड है कि कौन कौन बैंड है आपका डिवाइस सपोर्ट करता है। और ये क्यों देते हैं? सपोज इंडिया में अलग बैंड सपोर्टेड है, अब सेम आप यूएस में वो लॉन्च कर रहे हो तो वहाँ पे अलग बैंड सपोर्टेड है। आपने सुना भी होगा कई बार आप फोन बाहर से ले आते हैं फॉरेन से, वो इंडिया से सपोर्टेड नहीं कर रहा किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को, ठीक है। तो ये बैंड सपोर्टेड है। इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? ये एक टाइप से हार्डवेयर कैपेबिलिटी है आपकी कि आपका हार्डवेयर कैसे सपोर्ट करता है, ठीक। एक चीज। सेकंड आपका सिम में क्या है आपके पास में इंफॉर्मेशन? ऑपरेटर इंफॉर्मेशन है जिसको किससे पता चलता है? पीएलएमएन एक कोड है, फिलहाल बस इतना ही समझिए आप। पता है जिनको वेल एंड गुड है, बट ओवरव्यू के लिए समझिए। पीएलएमएन एक कोड है, यूनिक है ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन आपके पास में है ऑलरेडी। फर्स्ट वन बैंड, सेकंड वन पीएलएमएन। बैंड क्या है? कौन सा बैंड सपोर्ट करता है? सेकंड वन ऑपरेटर क्या है। अब सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आपके पास में है, यूई के पास में ऑलरेडी है। हार्डवेयर कैसा करता है और सिम कौन से इंसर्ट किया आपने, ये दो इंफॉर्मेशन है। उसको अगर कोई नेटवर्क एक्सेस करना है तो उसको एक प्रोसेस कि वो नेटवर्क को एक्सेस कैसे करे। मेरे पास में अब आसपास मान लो कि मेरे पास में साइट्स हैं एयरटेल और यहाँ पे एयरटेल की साइट है जो कि नेटवर्क रेडिएट कर रही है अपना, ठीक है। अब नेटवर्क कर रही है, ये पूरा यूई मान में नेटवर्क रेडिएट कर रही है, तो मेरा टारगेट है कि ये जो मेरा यूई है वो इस नेटवर्क पे अटैच हो जाए, राइट। यही है एज ए यूजर। हम टेस्टिंग वगैरह सबको भूलते हैं। एज ए यूजर मेरा टारगेट यही है कि जब मैं फोन ऑन करूं तो मेरा जो फोन है वो एयरटेल के साथ में अटैच हो जाए। यही टारगेट है, राइट। तो अब ये जो मेरा टारगेट है ये पूरा कैसा हो, कि ये जो प्रोसेस है फॉलो कैसे करूं, तो इसके लिए अब प्रोटोकॉल पिक्चर में आएंगे आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेस लिखा है, एक लेयर के बारे में बता रहा हूँ सिर्फ, और बहुत ही बेसिक ओवरव्यू। जो नेस लेयर है उसका काम क्या है कि डिवाइस जब ऑन होता है तो आपको नेटवर्क के साथ में अटैच करना, ठीक है। एक प्रोसेस इनिशिएट करना जिसके द्वारा आप ये अटैच स्टार्ट करो, कि नेटवर्क का एक्सेस स्टार्ट करो, ठीक है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? नेस लेयर है। कम्युनिकेशन मैसेज पे नहीं जाते में, ओवरव्यू क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन बैंड्स की प्लस ये इंफॉर्मेशन 11 की नेस लेयर एक्सेस करेगी, ठीक है। देन इंटरनल कुछ और प्रोसेस चलेगी, उसमें भी नहीं जाएंगे हम, ठीक है। देन यहाँ पे ये क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी सर्च करेगा। क्यों? क्योंकि जो सारा अपना पिक्चर है वो फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। जी नोड भी कोई फ्रीक्वेंसी और कुछ रेडिएट कर जो हमें स्कैन करनी है, ठीक है, जिसपे हमें लैच करना है। लैच मीन्स कनेक्ट होना है, ठीक है। क्या करेगा? वो फ्रीक्वेंसी स्कैन करेगा। स्कैन, सपोज इसने वो फ्रीक्वेंसी स्कैन कर लिया, अब वर्किंग है तो आप ARFCN सुना होगा नाम आपने, किसी एक बैंड का पर्टिकुलर ARFCN, ऐसा कुछ सुना है? यस यस। ठीक है। तो अब वो क्या करेगा? एक्सेस करेगा इस फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। देन अगेन कुछ प्रोसीजर फॉलो होंगे इस फ्रीक्वेंसी पे अटैच होने के लिए। तो ये जितने भी प्रोसीजर हैं ये कर कौन रहा है? ये प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं। इस प्रोटोकॉल्स में डिफाइन है कि इसके बाद में ये प्रोसीजर होना है, ये यहाँ डिफाइन है, ठीक है। देन ये तो सिर्फ एक चीज हुई कि एक आपने इनिशियल एक्सेस किया है कि आपने कोई भी अटैच हुए हैं। देन नेक्स्ट कॉल लगाया है, सपोज फॉर एग्जांपल हैंड ओवर करना है, ठीक है। कौन लेता है कि हैंड ओवर करना है कि नहीं करना? ये डिसीजन कौन लेगा कि कॉल लगाना है कि नहीं लगाना?
कहाँ डिफाइन है ये रूल, ये प्रोसीजर कहाँ डिफाइन है, ये प्रोटोकॉल्स के कारण डिफाइन। पिक्चर क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है तो मतलब ओपनली पूछो यहाँ पे, अभी फिलहाल जो हम इसीलिए डिस्कस करने के लिए हैं, अभी कोई भी क्वेश्चन आपका छोटा बड़ा नहीं है, कुछ भी पूछिए सिली से मतलब एक आपको लग रहा है कि ये पूछना चाहिए तो मतलब बिना हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन योर। अभी मैं नाम नहीं देख पाया, किसका था डाउट? आपको कुछ? प्रवीण बोल रहे हो? ओके थैंक यू। तो प्रवीण आपको क्लियर हुआ? हाँ मतलब प्रोटोकॉल अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा तो दो नोड के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो मेरा प्रोटोकॉल पिक्चर में आए। मेरे को कुछ भी करना है, मेरे को कुछ भी प्रोसेस करना है तो प्रोटोकॉल पिक्चर में आएगा। रूल्स हैं, मतलब आप एक चीज मानिए कि आप कुछ भी आप जो कर रहे हैं वो कहीं डिफाइंड है वो चीजें, राइट? वो चीजें डिफाइन कहाँ है, किसके हेल्प से डिफाइन है, वो डिफाइन कौन कर रहा है, वो प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। बट इसके आगे का क्वेश्चन मेरा ये है, मतलब ये प्रोटोकॉल लिमिटेड टू ओनली टेलीकॉम इंडस्ट्री या मैं उसको अक्रॉस मतलब टेली के बाहर भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कोरिलेट कर सकता हूँ? पहला डाउट। और दूसरा डाउट, ये जो मैं अभी जो हम ये प्रोटोकॉल जो हम पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, इट इज लिमिटेड टू ओनली आवर टेलीकॉम डोमेन, वी कैन यूज और एक्सप्लोर दैट नॉलेज टू आवर अदर इंडस्ट्री एज वेल अपार्ट फ्रॉम टेलीकॉम? ठीक है, ओके। एंड तीसरा क्वेश्चन, इसको मैं एक्चुअल कहाँ पे यूज कर रहा हूँ? इट इज दैट मतलब वही क्वेश्चन आएगा कि ओनली 10 के साथ ही रहेगा ये प्रोटोकॉल मेरा? ठीक है। सो आप टेलीकॉम जब बोलते हो ना तो वो छोटे इंडस्ट्री नहीं है, फर्स्ट चीज, ठीक है? यस। आप उसको डिवाइड करते हैं प्रोटोकॉल इंडस्ट्री को, ठीक है? फर्स्ट हो गया आपका आईटी में, ठीक है? ऑटोमोबाइल, ओके, ऑटोमोबाइल, देन टेलीकॉम R&D, टेलीकॉम R&D, देन टेलीकॉम इंफ्रा, देन यूई हैंडसेट्स, ठीक है? अब सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका आरडी का, आईटी का, सॉरी, ठीक है? अब जो मेरा ये AML सपोज फॉर एग्जांपल, ये किसी आज के टाइम पे क्लाउड पे जनरेट होगा, क्लाउड पे प्लेस किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सी कंपनी वर्क कर रही है, मैं एक एक का एग्जांपल लूंगा, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। ये जस्ट मुझे वो वही मतलब थोड़ा सा वो डिफरेंशिएट समझना था। राइट, हाँ वही मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा ये, ठीक है? डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? ओरेकल नाम है, ओरेकल जो ये नोड है ये डिप्लॉय करके देगा, ठीक है? AMF की। अब इसमें टेलीकॉम की नॉलेज कहाँ लगी, वो किसकी फंक्शनैलिटी है, सपोज कि AMF की क्या क्या फंक्शनैलिटी है फॉर एग्जांपल, तो ये उसको पता होना चाहिए कोई भी चीज डिप्लॉय, ठीक है? बट ये करेगा क्या, डिप्लॉय करेगा, ओके, क्लाउड पे करेगा डिप्लॉय, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सी चीज पिक्चर में आई, आईटी वाली, यस, ठीक है? देन आया ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल में मैं बात कर रहा हूँ V2X, ठीक है? V2X, व्हीकल टू एनीथिंग, ओके, ठीक है? अब व्हीकल टू एनीथिंग क्या होता है कि अब हम डेवलप क्या कर रहे हैं कि सपोज ये मेरा व्हीकल है, ठीक है? ये मेरा व्हीकल है, अब इसका एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो हम इनिशिएट क्या कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं आज के डेट में कि जब इसका मेरा एक्सीडेंट हो तो मेरा एक कॉल जनरेट हो जो नियर बाई, या तो मैं वेट कर रहे हैं उसके पास में मैसेज चला जाए, या फिर नियर बाई हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन में चला जाए, ठीक है? तो इसके लिए इसमें एक डिवाइस लगाऊंगा, वो किससे रिलेटेड होगा, मेरा वर्क करेगा, प्रोटोकॉल्स पे वर्क करेगा, इन्हीं किसी प्रोटोकॉल्स पे। तो ये क्या हो गया, V2X, व्हीकल टू एनीथिंग। देन नेक्स्ट अप और इसमें यूज करेंगे जो हमारा सेल्फ ड्रिवन कार है। अब सेल्फ ड्रिवन कार है, वो जहां भी कम्युनिकेशन आएगा वहां यही प्रोटोकॉल आएंगे, ये अपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये एक कार दूसरे कार से मतलब डिस्टेंस कैसे बना के रखेगी, ये फिर कम्युनिकेट कैसे करेगी, ठीक है? तो क्वेश्चन आता है कि सेल्फ ड्रिवन कार का जो कॉन्सेप्ट है कि एक कोई कार चल रही है, वो आसपास में ट्रैफिक में एक दूसरे से डिस्टेंस कैसे मेंटेन करके रखेगी,
ठीक है, तो मतलब वो आपस में बात कर रही है, अगर आप मैं इसको एक बहुत लैंग्वेज में बात करूँ तो, कि Yes. आपस में कुछ एक तालमेल बिठा रही है, ठीक है, मतलब तुम इतना दूर चल रहे हो तो मैं इतनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा, राइट। अब ये जो कम्युनिकेशन है इनका, ये किस बेसिस पे, प्रोटोकॉल के बेसिस पे। देन Okay. इसको मान के चलते हैं, यहाँ पे भी मेरे पास में एक डिवाइस है, यहाँ पे भी मेरे पास में एक डिवाइस है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस, ठीक है। तो ये किस में आ गया, ऑटोमोबाइल में, ठीक है। देन अब मैं आता हूँ टेलीकॉम R&D में। टेलीकॉम R&D में मैं जाऊँ तो लास्ट में यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोट की होगी कि मैं बोल रहा हूँ 5G 2019 में 18 में ही आ गया था, राइट, बट अभी इंडिया में Yes. ना, तो इस पे जो R&D है वो कहीं तो चल रही है, कुछ तो काम हो रहा है पहले से इस पे, और 2019 में भी ये इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब तक कि ठीक है, इस पे काम होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। रिसर्च तो काफी पहले से चल रही है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अब इसका चलो R&D इसका होगा ऑटोमोबाइल का, इसमें कर रही है BMW, ठीक है। नेक्स्ट आता है R&D क्या है कि कोई भी अपना डेवलप होने से, अब जियो में आपने अगर सुना हो कि जियो ने एक कंपनी की थी रेडिसिस, Yes. ठीक है। अब ये कंपनी क्यों एक्वायर की, जियो के खुद के पास में वो है सब कुछ, वो है फीचर, मतलब क्या बोलते हैं, इंफ्रा वगैरह सब कुछ डेवलप्ड है, बट उसने ये कंपनी क्यों एक्वायर की, सिर्फ रिसर्च के लिए, ठीक है। ये जब भी वो 5G इंट्रोड्यूस करेगा, 5G मार्केट में लाएगा, तो पहले के जो रिसर्च है वो कौन करेगा इसके लिए, तो रेडिसिस एक R&D कंपनी है, ठीक है। Yes. उससे पहले उसके टेस्टिंग वगैरह के प्रोडक्ट स्टेबल वगैरह करके कहाँ चेक हो रहे हैं, कौन टेक केयर कर रहा है इसकी, रेडिसिस कर रहा है, Redis के लैब में। हाँ, मतलब वहाँ पे लैब में जो उसके पास में एनवायरनमेंट है, तो पास में वो चीजें हैं डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो अब जियो के लिए सिर्फ कौन करके दे रहा है, रेडिसिस करके दे रहा है, ठीक है। देन आती है इंफ्रा में मैं काउंट कर लेता हूँ रिलायंस खुद को, ठीक है को, यहाँ तो इसकी R&D हुई, अब ये इंफ्रा मतलब डिप्लॉय कौन करेगा, रिलायंस जियो करेगा, Infra in terms of operator. हाँ, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर मीन्स बहुत और भी पार्ट हम दे सकते हैं कि मीन्स हार्डवेयर कौन बना रहा है, प्लस आपका डिप्लॉय कौन कर रहा है, मतलब बड़ा फील्ड लेके चलते हैं, बट अब शॉर्ट में समझते हैं कि डिप्लॉय कौन कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। देन कौन कर रहा है इसको, रिलायंस जियो, ठीक है। अब सपोज फिर ये प्रोटोकॉल कहाँ पिक्चर में आएंगे, इन सब में, अब आपने डिप्लॉय कर दिए आपके डिवाइस, ठीक है, बट इन हो गई डिप्लॉय करने टेस्टिंग किसकी करते हैं, मतलब आप जब बोलते हो कि मैं LT टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्या आप बोल रहे हो 5G की टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, कि मैं कुछ फीचर टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या टेस्ट कर रहे हो, आप ये प्रोटोकॉल टेस्ट कर रहे हो। जब मैं ये आपने अगर वर्ड आपने सुने होंगे टेलीकॉम विंडोवर, CSFB, या फिर थ्रूपुट डेटा, मतलब चलो थ्रूपुट एंड डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब जब मैं इन चीजों का नाम ले रहा हूँ ना, तो किस पे रही है ऑपरेट, ये चीजें सही चल कि नहीं चल रही हैं, एंड यूजर तो ये बोल देगा कि भाई वो कॉल करता हुआ जा रहा था एक ही नोड बी से दूसरे नोड बी में, और यहाँ कहीं कॉल ड्रॉप हो गया, ठीक है। एंड यूजर को सिर्फ इतना पता चलेगा, उसका रीजन क्या है, कॉल ड्रॉप क्यों हुआ, वो कहाँ से पता चलेगा, इन प्रोटोकॉल्स के से, कि यहाँ पे कुछ मिस फंक्शनैलिटी हुई है, इसके कारण ये कॉल ड्रॉप हुआ है, राइट। ये सब चीजें कंट्रोल कौन कर, ये प्रोटोकॉल्स कंट्रोल कर। देन लास्ट बच गया मेरा UI। अब UI आप जितने भी हैंडसेट्स खरीद रहे हो, इसके अंदर सबके अंदर चिपसेट है, इन सब टेक्नोलॉजी है कि 4G पे करेंगे, 5G पे करेंगे, 3G पे करेंगे, तो ये जो 3G 4G 5G पे वर्क करेंगे, तो ये क्लेम कैसे कर पा रहा हूँ मैं, हाँ ये करेंगे वर्क, ये क्लेम कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो इतनी चीजें हैं, ये जो अभी बस हमने 2 मिनट में जो पढ़ ली, ये सब चीजें हैं इसके अंदर डिप्लॉयड, ये इसके अंदर काम कर रही है, जिसको बोलते हैं मॉडर्न, एक मॉडर्न बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा चिप अभी मान के चल लो, एक डिवाइस है, वो इन सब के अंदर लगा है जो ये चीजें ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देन इसकी भी टेस्टिंग, अब इसको भी मैं करूँ तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ चिपसेट में, आगे खैर शायद कर रखा है नेम कंपनीज का, चिप का, ठीक, मैं तो कंपनीज का नाम वैसे दिखाऊंगा, चिपसेट वेंडर्स, कि चिपसेट कौन बना रहा है, तो सबसे एंड है क्वालकॉम, ठीक है।
देन सुना होगा मीडियाटेक, MTK, देन आपने सुना होगा इंटेल। एप्पल के अंदर इंटेल के थे, इंटेल अभी खैर उसने एक्वायर कर ली है, उसने कुछ पार्ट कर लिया है मोटम वाले के। देन हुआवे और सैमसंग अपना खुद का भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब मेन ब्रांड है। देन जितने भी आपके ये हैंडसेट मेकिंग कंपनीज हैं, ओप्पो। तो अब ये जो आपका साइकिल है, ये हर जगह मान लो कि ये ऑटो में भी क्वालकॉम का चिपसेट यूज हो रहा है, तो तुम उसको डेवलप करेगा तब भी टेस्टिंग होगी। देन अब इसने क्या किया, ऑटो ने खरीद लिया इसका चिपसेट, अब इस कार में इसने चिपसेट लगा दिया क्वालकॉम का, ठीक है। तो ये भी टेस्टिंग करेगा। अब टेस्ट कर किसके रहे हैं, प्रोटोकॉल्स की कर रहे हैं। इसी पूरे सिनेरियो को जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस प्रोटोकॉल की, इसी को LT टेस्टिंग, LT प्रोटोकॉल टेस्टिंग, फिर ये मतलब डिफरेंट एरिया में डिवाइड हो जाती है कि ये जो इतनी चीजें कर रही हैं, ये बहुत बड़ा मतलब काइंड ऑफ बड़ा एरिया है, इतने पूरे पे कोई नहीं करता काम। हो सकता है एक बंदा एक इसी पे कर रहा हो, दूसरा इस पे कर रहा हो, तीसरा इस पे कर रहा हो, चौथा इस पे, कोई ऐसा बंदा हो जो इन सब के सिर्फ फंक्शनैलिटी चेक कर रहा हो, कोई ऐसा हो जो डिटेल में इस पे ही काम कर रहा हो। तो वो फिर डिफरेंट सिनेरियोज हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रोटोकॉल टेस्टिंग इज नॉट इट इज नॉट लिमिटेड विथ माय कोर लेवल टेस्टिंग ओनली। हाँ, राइट, जहाँ भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जहाँ भी है वहाँ प्रोटोकॉल आएगा। ओके। अभी मुझे नहीं, आपने नाम सुना है कि कुछ कंपनीज हमारे स्मार्ट मीटर पे काम कर रही हैं, बिजली वाला? हाँ, बिजली वाला, ठीक है। स्मार्ट मीटर पे काम कर रही हैं, तो वो क्या होता है कि आपका कम्युनिकेट मतलब वायरलेस है वो मीटर, स्मार्ट मीटर वायरलेस है आपका, और वो कम्युनिकेट करके बताता है कि कितना कंजप्शन है। तो जहाँ भी ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट आ गया ना, कि कोई भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है। अब यार मैं एक कंपनी भूल गया, उसने वो काफी एक्टिवली हायर करती है, नोएडा में है, लैंडिस एंड गियर करके एक कंपनी है, इजराइल बेस्ड है कि स्वीडन बेस्ड नो, ठीक है। आप मतलब सर्च कर सकते हैं इसके बाद में, लैंडिस एंड गियर, LYD और कुछ GYR करके उसका फॉर्म्स है, ठीक है। तो वो हायर करती है, उसमें आपको दिख जाएंगे ये सब नाम, दिख जाएंगे प्रोटोकॉल्स के आपको। वो क्या है ना, कम्युनिकेशन वो इसमें नहीं है, मतलब डोमेन में नहीं है, टेलीकॉम में नहीं है, वो स्मार्ट मीटर्स बनाती है वो, बट वहां पे भी आपके पास में प्रोटोकॉल। अब चेंज क्या होता है, सपोज मैं जब बात कर रहा हूँ टेलीकॉम की, तो इस प्रोटोकॉल्स की मैं किसी और फंक्शनलिटी में इंटरेस्टेड होऊंगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट जब मैं बात करता हूँ एनर्जी मीटर की, तो हो सकता है इतना डिटेल नहीं रहूँ मैं कि इस कोई प्रोटोकॉल के पास में 10 फंक्शनलिटी है, हो सकता है मैं 1 और 2 फंक्शनलिटी चेक कर रहा हूँ। बट मैं बात कर रहा हूँ टेलीकॉम में, तो हो सकता है मैं 7 फंक्शनलिटी चेक करूँ उसमें से, मेरी रिक्वायरमेंट है फिर वो अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये डिपेंड करता है फिर जहां भी मतलब कम्युनिकेशन है ना, कि 2 नोड आपस में बात कर रहे हैं किसी कंडीशन में, देन कम्युनिकेशन देन ये प्रोटोकॉल आपके पिक्चर में आए। ओके। इवन जब मैं यू टू यू टेस्टिंग कर रहा हूँ, यू टेस्टिंग, उस टाइम पे भी मेरे प्रोटोकॉल पिक्चर में आएंगे फिर? तो क्या, जब मैं यूई लेवल की टेस्टिंग कर रहा हूँ? आएंगे मतलब अब टेलीकॉम के अंदर है, मैं बाकी सब फील्ड की नहीं कर रहा। जस्ट मिनट प्रवीण जी दादा। कोई भी वायरलेस डिवाइस है वो आपस में कम्युनिकेशन तभी करेगा जब हम प्रोटोकॉल को इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हर एक वायरलेस डिवाइस का टेस्टिंग होता है और वो टेस्टिंग बेस्ड होता है प्रोटोकॉल का। ओके, यस, ठीक है। कंटिन्यू। अब एक सेकंड में उस पर जाऊंगा, ठीक है, ये रही, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ डिवाइस की यूई और नेटवर्क साइड बोल देता हूँ उसको, ठीक है। तो आप देखोगे यूई साइड क्वालकॉम, इंटेल, ब्रॉडकॉम, मीडियाटेक, और देन सब भी आप ऐड कर लो, ओप्पो, वीवो, एप्पल में जितने भी मेकिंग कंपनीज हैं वो सब यहाँ पे आप ला सकते हो यूई के बाद में। ये चिपसेट बनाती हैं, देन ये चिपसेट जिसको भी जाए इन कंपनीज को सब आ गई, तो ये करती हैं यूई साइड पर, ठीक है। देन आते हैं नेटवर्क साइड, हुआवे, जेटी, सेंटिनेल, मतलब सुना होगा आपने काफी कंपनीज के नाम, मैवेनेर, पैरेलल वायरलेस, स्टरलाइट, ये। देन कुछ कंपनीज क्या है, इक्विपमेंट बनाती हैं, एक्सफो, स्टरलाइट इन्वॉल्व है। देन ऑपरेटर मतलब ये इंडियन ऑपरेटर्स हैं, देन ये US ऑपरेटर है, देन ये आपका जापानीज ऑपरेटर है,
ठीक है, तो ये सब आपका वो है, ये कंपनीज आपकी टेलीकॉम के उस फील्ड में कर रही हैं। देन सर्विस बेस, अल्ट्रान, एल&टी, मतलब ये सर्विस बेस क्या है कि आपकी ये कंपनीज हायर करती हैं, देन किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को एक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। तो हर जगह मतलब इन इन एरिया में अपने में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कंपनियों के नाम कुछ लिमिटेड है आज की डेट में, जितना भी सॉफ्टवेयर नहीं कंपनियां बहुत हैं, है ये तो, एसेंचर, हाँ परसिस्टेंट, ईच एंड एवरी कंपनी वर्किंग फॉर टेस्टिंग। ठीक है, ये ओपन बस एक नेट कुछ आने से एग्जाम्पल है। कंपनियों के दरवाजे बहुत सारे खुल गए हैं, आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। अगर टेलीकॉम में आप बने रहोगे तो जस्ट जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इसी में घूमते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में बहुत ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? डाउट किसी को? ना सर, मेरी तरफ से क्लियर है। ठीक है, इसलिए कोई प्री रिक्विजिट है जैसे लाइनेक्स हो, क्लाउड हो? नहीं ऐसा कुछ प्री नहीं है, बट एक ये मान के चलो कि टेस्टिंग है, सपोज आपको प्रोटोकॉल नॉलेज है, ये प्रोटोकॉल वाली नॉलेज है, ठीक है, देन अगर कुछ ऐड है तो एक एडवांटेज क्रिएट करता है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी है कि वो आपको नहीं आता तो एलिजिबल नहीं है, बट वो फिर एक जनरल सा सिनेरियो है कि जिसको जितनी ज्यादा चीजें आती हैं उतनी एडवांटेज क्रिएट करता है। सपोज मैं बोलूँ कि मेरे को 4G आता है, देन कोई बंदा आके बोलता है मुझे 4G प्लस 5G दोनों आता है, तो उसके लिए एडवांटेज मतलब हो सकता है प्रेफरेंस मिल जाए आपके कंपैरिजन में, ठीक है। देन ये भी हम डिटेल में नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग्स क्या है हमारे पास में, L1, L2, L3 मैं लेयर्स बता रहा था, तो उसके बेस पे डिफरेंट टेस्टिंग हो जाती है कि कुछ L1 पे काम कर रहे हैं, कुछ L2 पे कर रहे हैं, देन L3 पे हैं, देन डिफरेंट नोड पे कि UEG नोड नेटवर्क, 3 एरिया हो गए, मतलब टेलीकॉम में ही हम एरिया बांट सकते हैं, ई नोड बी कोर नेटवर्क साइड, ठीक है। ये फंक्शनल टेस्टिंग, कन्फर्मेंस टेस्टिंग, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है, ये हम कोर्स में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देन टूल कौन कौन से यूज करते हैं, तो QXTM, सॉरी क्वालकॉम के केस में QXTM, QPST, QCAT, QXTM हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे कैसे जो थ्योरी हम पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद में और प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कैसे यूज करना है वो सब करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कोर्स में। देन मीडियाटेक के केस में ELT है, देन E-Node B में वायरशार्क यूज करते हैं, वायरशार्क ओपन सोर्स टूल है, ये भी हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। देन कोई अगर इशू मिलता है आपको तो जीरा कैसे रेज, जीरा मीन्स एक प्रोजेक्ट को कुछ इशू मिलता है तो वो आप रेज कैसे करोगे, बताओ कैसे कि भाई इस चीज में ये इशू है, ठीक है, तो वो आप इसकी हेल्प से करोगे, ठीक है। देन ये नीज हमने डिस्कस ही की, हम आपको कोर्स कंटेंट, ठीक है। तो ये अभी ये जो कोर्स कंटेंट में दिखा रहा हूँ ये उसके केस में है अगर सिर्फ 5G के इंटरेस्टेड हो, L+ उसमें ओवरव्यू नहीं, हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे LT, ठीक है। बट इन केस ऑफ आप अगर इंटरेस्टेड हो ओनली 5G के लिए तो फर्स्ट हम कवर करेंगे LT ओवरव्यू, देन इंट्रोडक्शन विद 5G इंट्रोडक्शन में जैसे हमने अभी रिक्वायरमेंट वगैरह एक ओवरव्यू से दिया था हमने, वो सब हम करेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑप्शन हम लेंगे, देन आर्किटेक्चर, ठीक है, हमारे पास में इसके केस में स्प्लिट्स हैं और एन स्प्लिट हैं, वो सब हम में कवर करेंगे। देन इंटरफेसेस, ऑल इंटरफेसेस वी हैव, देन फ्रेम स्ट्रक्चर, न्यूमरोलॉजी, दिस थिंग वी विल कवर इन डिटेल। The next, in short, like all layers which all we have like here, initial acquisition or layers, these like where we have this one, like this one is related to RRC, then channels, then detail of each and every layer, okay, these we will cover,
in detail. Any doubt in case of and means in anyone? And how much time you will like cover complete 5G? Yeah, around I think 3 months. Okay, and 4G Only like plus 5G both? Yeah. We have 4G designed itself. combined a course 4G plus 5G. So almost in 1 month cover 4G and next 2 months cover 5G. Also we have automation team. But you just said na like for 5G like 3 months will be A different mode we have. If you only interested in 5G in detail, then different course we have. 4G plus 5G different we have. Only 4G different we have. Okay, that means Depends on your requirement. Depends on your that means requirement. you will like cut short some of the part of like 5G and you will specifically you will teach, correct? Yes, based on your requirement. Like major parts. So will it be sufficient for interviews or like further working? Yeah, definitely. Whatever related to telecom protocol testing will cover all stuff which are required to know for interview purpose. Our motto is selection, transition to testing. Okay, and like what about auto tools? Yes, do we get we have exposure on them? another colleague, Pankaj. Yeah, hi everyone. So, right. So basically, as of now, we talked about mainly complete 5G, the 4G access side of the network. So when we say network, so which includes your two side of the coin. One, it includes your access side of the network, right, which we have already talked about in this demo session. And it is very important to understand the complete core solution also, because when you have a complete control and the understanding of the access side of the network in 5G or in 4G, it is very important also to understand the backend part, the core side of the network also, because in the core side of the network, you say core side of the network, that means I am talking about LTE core or 5G core. So LTE core and 5G core will have a different set of protocols. It will have a different stack. It will have a, SIP. It will have a SIP protocol. It will have a diameter protocol in LTE. API interfaces, which is basically spread in 5G. So not only to understand the access side of the network, it is very important to understand the core side of the network. I would be responsible for helping you guys to complete core solution. So when I say core solution, so it means I'm talking about how SSS will come into picture. That is your database. How your UDF will come into picture. How your PCRF, that is the policy which is derived. The policy with what does it mean? The is applied in 4G network, applied in 5G network. So it is important to understand the policy. It is important to understand the user database and also how the voice will be handed over, because without IMS is another component in the network in 5G or 4G. So voice over LTE or voice over radio, it will be understood only when you will have a complete understanding of the SIP protocol. That's complete solution. So what I'm going to cover up in my session that will help you to grow more career, not only access side, but also will help you to understand the core side of the network, where you know that the complete call flow, when the attach will happen, when will attempted, when a registration would take place. So access side of the network, with the help of QSDM, you will be able to understand. But what other tools will be required to understand complete end-to-end flow messages? So I will cover up IP protocol, I will cover up diameter, I will cover up REST API, which is required in 5G, correct? And I will demonstrate you the complete end-to-end protocols. Those are different protocols in the core side of the network. And this is not only limiting to
only the theoretical aspect, but I'll give you a demonstration. We have a SIPI, we have a Seagull. These are the tools on the slide. You know, the touch base of the landslide. So this is parent tool. How the it will be generated. DNS query will hit to the system, and based on that, how a DNS query or MME will come into picture. EGW or SGW, that is your complete user plane, and control plane will include PCRF, your MME, your DNS, your so these parts that I would be taking care of. So I would encourage you guys not only to understand access side, but also to understand the core side of the network, which is a very, very big, you know, the module. So we can call it, we have a MS training module. We have core solution also. It is a separate module. And we have a 5G core solution. It also have a separate. So 3 different topics or the courses we can recommend you. Whomsoever is interested to learn these areas also, they can give your name to Avinash, and he will help you to get enroll in this kind of trainings, right? So this is what I've done. So Avinash, over to you. So in this 4G plus 5G complete VNR also covered. Some automation tools are also covered for how to make a script to test in bulk testing. So any guys, you have any question? You यार can एक बार बताओ, हाँ मैं इन लोगों से ही पूछ लेता हूँ, किन लोगों ने तक एक्सेस साइड पे काम करते हुए कोर साइड का थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया है अपने करियर में, जहाँ आपको डील करना पड़ा हो डायमीटर के साथ या सिप प्रोटोकॉल के साथ या आपके रेस्ट एपीआई के साथ? कितने लोगों ने अभी तक कोर साइड पे काम किया है? यार पढ़ा है, लाइक काम नहीं करा, पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। वेरी गुड। शांत ने एक्चुअली कुछ एक ऐसा पॉइंट बोला कि पढ़ा है बट काम नहीं किया। बट अगर आपको काम करने का मौका मिले, लाइक आपके ट्रेनिंग के मॉड्यूल के बेसिस पे अगर मैं आपको हैंड्स ऑन दूं, हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं जो सिप के ट्रैफिक को जनरेट करते हैं, डायमीटर के ट्रैफिक को जनरेट करता है, डीएनएस के ट्रैफिक को जनरेट करता है। ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। रेस्ट एपीआई, अगर हम इसके ऊपर ऑप्शन भी सीखें कि हम इसको कैसे करें, क्योंकि आजकल के टाइम पे कोई भी कंपनी ले लो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, मेमनियर है, एरिक्सन है या सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, हर कंपनी को ऑटोमेशन वाला बंदा चाहिए जिसको कोर साइड नॉलेज हो, वो मैसेजेस समझता हो, उसको क्विक कैसे कर पाए, कैसे मॉडिफाई कर पाए, उसको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे टूल्स की नॉलेज अगर आपको हैंड्स ऑन कराएं और आपके रिज्यूमे में लिखें, आपको कॉन्फिडेंस आए और बाद में आप इंटरव्यू देने बिल्कुल एक्सप्रेशंस और इंप्रेशंस ऐसा है कि आपको इनमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो क्या ये एड ऑन करेगा आपके प्रोफाइल पे? एक्सेस साइड सीखते हुए आपको कोर साइड, है ना? तो हम लोगों के मॉड्यूल में बेसिकली मैं आपको बता दूं, हम लोगों के मॉड्यूल में आगे तो एक्सटेंड कर सकते हो जो भी है, आपको हम 5G वॉइस ओवर 5G भी सिखाएंगे। यानी वॉइस ओवर 5G जब बोला तो SIP प्रोटोकॉल, सिप प्रोटोकॉल सिखाएंगे, वॉइस HDV भी सिखाएंगे, उसमें भी सिप आएगा। तो IMS is same for both the technology? यस, यानी IMS का इतना बड़ा फ्यूचर है कि IMS इज द ओनली सोल्यूशन। आपको अगर ऑडियो सपोर्ट करना हो, वीडियो सपोर्ट करना हो, आने वाले टाइम पे यू नो मेटावर्स भी आने वाला है। मेटावर्स कितनों ने नाम सुना है, कितनों ने नहीं सुना, तो वो मेटावर्स का जो वर्ल्ड है ना, जहाँ पर आपकी यू नो वॉइस और ऑडियो और वीडियो जाएगी, जो ऑगमेंटेड फॉर्म में होगी, रियलिटी नहीं होगी, सब कुछ वर्चुअल होगा। बट वर्चुअल सपोर्ट कहाँ से आएगा? वर्चुअल सपोर्ट पीछे आपके IMS होता है जो इन सर्विसेज को ट्रिगर करता है, चलाता है और अंडरस्टैंड। हमारा नहीं पता था कि मेटावर्स में भी IMS यूज हो रहा है, बट अगर हो रहा है तो मेटावर्स रियलाइज ही नहीं। ओके, दैट इज जिस समथिंग है वो एकदम से मतलब एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आ गया टेस्ट में, राइट? टेस्ट में टेलीफोनिक एप्लीकेशन सर्विसेज बोलते हैं, लेकिन उसके लिए मान लो वो एप्लीकेशन सर्वर टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट तो टेलीफोनिक एप्लीकेशन, उसको कोई दूसरा एप्लीकेशन सर्वर आएगा जो आपका VR वर्चुअल रियलिटी को सपोर्ट करता होगा, ठीक है?
और वह हर कंपनी अपना अपना वर्चुअल रियलिटी बॉक्स बनाएगी और उसको उठाकर इंटीग्रेट कर देगी किसके साथ, IMS साथ। अब उसमें वीडियो भी चल रहा है, ऑडियो भी चल रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी आ रही है, वर्चुअल रियलिटी आ रही है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट उसका सिग्नलिंग है, बात कहाँ से होगा, जब तक आपको सिप नहीं आएगा, जब तक आपको IMS नहीं आएगा, आपको वो फ्लो भी नहीं समझ आने वाला। करेक्ट। तो हम लोगों के पास बहुत अच्छा एडवांस कोर्स है जो IMS सिप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, यू। और ऑल्सो हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे आपको कि इसका वॉइस और वीडियो LT पे कैसे चलता है, G पे कैसे चलता है। खाली ये कवर नहीं करेंगे, हमें तो एयर भी तो काम करनी है। तो हो गया आपका नॉर्मल सिप सिग्नलिंग, भाई LT कोर भी तो है, 5G कोर भी तो कुछ है जहाँ पर REST API चलता है। भाई HSS से बात कर रहे हो, यूजर प्रोफाइल हो गया, या UDF से बात कर रहे हो, पॉलिसी कहाँ से अप्लाई करोगे। पॉलिसीज भी तो कुछ होती है जिसमें QCI पैरामीटर डिफाइन करते हैं, QCI 1 2 3 4 5 6 7। तो ये QCI पैरामीटर तो आपके PCR, करेक्ट। तो ये कहाँ से सीखोगे, ये कंप्लीट कोर्स अटैच कर दी, ऑन होकर उसने वो सेल ढूंढ लिया, सेल से ढूंढकर आप टावर से कर गया आपका मोबाइल। बाद उसके ऊपर कौन कौन से पॉलिसीज अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन मैसेज ट्रिगर हो रहा है, उसको कौन कौन सी टेलीकॉम सर्विसेज मिल रही है, ये पीछे बैठा हुआ कोर नेटवर्क डिसाइड करता है। भाई आपके लिए वॉइस ओवर सपोर्टेड है भी या नहीं, कौन डिसाइड करेगा। आपने इंटरनेट यूज किया, इंटरनेट यूज करने का बैंडविड्थ खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया और कंजम्पशन सारा कंप्लीट हो गया, ये कौन डिसाइड करेगा, PCR डिसाइड करेगा। अब आपका जब डेटा जा रहा है, इतनी हाई स्पीड है, तो वो जो टनल बनेगी, जो टनल बोलते हैं बिटवीन SGW PGW या आप UP बोल लो 5G के अंदर, वो टनल कहाँ क्रिएट होगी, आपकी कोर साइड पे क्रिएट होगी ना। तो हमें कोर साइड भी समझना है। तो आई वुड हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड कंप्लीट कोर सॉल्यूशन, नॉट ओनली थ्योरेटिकल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट। क्योंकि हमारे ट्रेनर ने आपको इसी करंट सेशन में QSDM की वैल्यू बताई, उनके जो टूल्स हैं, तो वो सारे EUE बेस्ड यूमुलेटर है। अगर आपको मैं बोलूँ नेटवर्क बेस्ड यूमुलेटर चाहिए हो, नेटवर्क बेस्ड ट्रैफिक जनरेटर चाहिए हो, वो कहाँ से लाओगे, वो तो कोर सोल्यूशन में चलता है ना, वहाँ तो प्रोटोकॉल भी चाहिए। हम तो ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टारगेट यू। तो मेरा जो मानना है, मेरी अभी अविनाश इज दी CEO ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों का एक डिस्कशन हुआ कि आजकल की जो मार्केट में डिमांड है वो एक कंप्लीट पैकेज मांगते हैं। कंप्लीट पैकेज मतलब रिसोर्स को सब कुछ आता हो, सारा पूरी तरह ना आता हो, बट सारा एंड को अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट जरूरी है, जब आप इंटरव्यूअर को इंटरव्यू दे हो तो आपको अगर एक्सेस का पूरा स्ट्रॉन्ग एरिया है आपके हाथ में, तो आपको कोर का भी पता होना चाहिए कि मेरा एक्सेस जब ये करेगा तो कोर कौन से एक्शन करेगा। तो ठीक है, आपको ग्रो करेगा निशान करियर में। और भी ओके, तो लाइक जो अभी हम लोग जो 15-16 लोग ज्वाइन हैं, लाइक हम लोग का जो मेरे ख्याल से इसमें अगर सबके भी एक्टिव बोलूं तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया लाइक 3-4 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक हैंडसम प्रोफाइल पे हैंडसम लाइक पैकेज में हम लोग पहुंच जाएं, राइट। देन फिर जो आप जो बता रहे हो कि जो एड ऑन्स हैं आपके, देन हम लोग उस पर मूव कर पाएंगे इजीली, क्योंकि पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो देन फिर एड ऑन पे जाएंगे। यस करेक्ट। हाँ, दोनों साथ कर सकते हो, देयर इज एनी चैलेंज, क्योंकि दोनों ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट है, राइट। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि मोबाइल ऑन किया, एक टेस्ट सिनेरियो बताता हूँ, मोबाइल ऑन किया, अटैच किया, लैच हो गया, आप ये एक्सेस साइड पे देखोगे, सेम चीज आप साइड पे भी देखोगे, अटैच करने पे क्या होता है। तो दोनों इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं, कर सकते हो, दोनों चाहो तो आप उसको सीक्वेंस में भी कर सकते हो। मेरा मानना है ये एक ही मॉड्यूल का पार्ट आएंगे, हम लोग आपको ऑफर करेंगे ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो, कंबाइन करें, निकलेंगे तो मोटा मोटा सारी चीजों का नॉलेज होगा आप लोगों को। सो लेट्स से एनी क्वेश्चन आंसर। तो 3 मंथ्स में हम लोग 4G प्लस दीस छोटे छोटे बड़े बड़े एडवांस के लिए, उनको छोटे नहीं है, तो ये हम लोग 3 महीने में हम 4G प्लस 5G पर एंड सम बेसिक ओवरव्यू ऑन OLT
और VONR, इतना हम कवर करेंगे। रेस्ट हमें अगर IMS में एक्सपर्ट बनना है या VONR में जाना है, उसके लिए सेपरेट है हमारे पास। But 4G 5G plus basic of Bolti VONR is sufficient to deploy you in a market in a good highly package. इसमें हम लाइक थ्योरेटिकल के साथ साथ लाइक टेस्टिंग जो मैं समझता हूँ उसमें मैनुअल भी होता है और ऑटोमेशन भी होता है। हाँ, तो मैनुअल इज तो लाइक सिखाना है, सीखना आसान है। ऑटोमेशन के टूल तो हमें बताएंगे। At the end of the course, we'll arrange 2 days of automation testing. Okay. Yes. तो एटलीस्ट हम लोग टूल पे भी बोल पाएंगे कुछ। सॉरी, तो एटलीस्ट हम लोग टूल पे भी बोल पाएंगे ना, लाइक कोई बोलेगा कि मेरे पास खुद का लाइसेंस वर्जन QXDM है, 2 वर्जन है, 2 लाइसेंस है मेरे पास। रिसेंटली डिप्लॉयड इन वियतनाम, वहां पे टेस्टिंग के लिए लगा हुआ है। सो वी हैव सफिशिएंट टूल टू शेयर यू, कैसे हम यूज करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। क्योंकि जब 3-4 साल का एक्सपीरियंस लगाएंगे तो लाइक हाँ, 3-4 साल का एक्सपीरियंस लगाएंगे तो 3 महीने में डेली 2 आवर अगर आप पढ़ोगे तो सफिशिएंट है कि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लगा के 3 गुना पैकेज तक पहुंच सकते हैं आप। क्योंकि उसमें फिर वो टूल का पूछ सकता है, राइट, कि लाइक ऑटोमेशन में क्या टूल यूज किया, कैसे काम करना उसमें। यस, अभी और कोई इसमें हम लोग 4G का प्लान ज्यादा रख रहे हैं या 5G का? हम कंटेंट वही रखेंगे जो टेस्टिंग में यूजफुल होगा। यस, क्योंकि 4G कंप्लीट रहेगा, प्लस 5G में जो एड ऑन आया है हम उसको ऐड करेंगे, और जो भी 5G के एलिमेंट है उसका डीप में फंक्शनैलिटी देखेंगे। कोई भी हम NSA और SA का कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, सारे कवर करने जाएंगे तो हमको साल लग जाएगा। तो जो मार्केट में डिप्लॉयड है, जैसे US में है और इंडिया में, लाइक जियो NSA पे आ गया, पहले ऐसे था, अभी NSA पे आ गया वो। ओके, हाँ, मतलब लाइक अपना इधर कोर और इधर अपना एक LT और एक JNB दोनों। यस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मास्टर एंड सेकेंडरी। बिल्कुल, वो NSA पे आना पड़ेगा सबको, इफेक्टिव वही है। यस, विल बी मोर NSA। ऐसे न्यू बॉर्न बेबी के लिए है बेसिकली। नया ऑपरेटर अगर कोई आएगा तब ऐसे लेके आएगा। हाँ, अंडरस्टूड। और मार्केट में प्राइवेट 5G भी आ रहा है, कंपनीज अपने सॉल्यूशन खुद ही करेंगी। बाकी लोगों का कोई क्वेश्चन आंसर? अच्छा, इसके जो अपने जो ई बुक्स या फिर अपने जो प्रेजेंटेशन थी या फिर अपने नोट्स भी आप शेयर करोगे ना? हाँ, जो व्हाट एवर PPT यूज्ड इन क्लास विल शेयर एवरी डे। हाँ, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो हम लोग लाइक रिवाइज करने में इजी है। रिकॉर्डिंग पे मेरा सजेशन है, डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डिंग, बी अवेलेबल ऑन टाइम फॉर 2 आवर्स सैटरडे एंड संडे। नहीं तो मैं एक बार में आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, आप उसी से पढ़ लेना। ना, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज 2 घंटे पढ़ाई कर ली, राइट, अब 2 घंटे मैंने नोट भी कर लिया। अब सपोज मैंने संडे को पढ़ लिया और ट्यूसडे को मेरे को कुछ याद आया कि यार क्लास में ये क्या बोला था उस टाइम। विल प्रोवाइड रिकॉर्डिंग इन ड्राइव विथ लिमिटेड एक्सेस। हाँ, चलेगा, मतलब लाइक मेरे को किसी को शेयर करने का, मेरे को मेरे लिए चाहिए, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे आपका कोई सेशन मिस हुआ, कुछ चाहिए तो आप मेरे को बोलोगे, मैं आपको ऐड करूंगा। यस सोहन, सोहन, एनी डाउट? हेलो, बोलो भाई। तुम्हारा क्वेश्चन टाइप कर दो। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं तो चेक करता, आदमी करता। बाकी मैंने निशान तो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। सर क्लियर है सर, जो मेरे इन्होंने क्लियर कर दिया तो बस क्लियर है सर। हाँ जी। सो मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करेंगे, 3 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, उस ड्यूरेशन में ही आपका CV मोटिवेशन होगा। जो ट्रेनिंग में कंटेंट रहेंगे वो CV में जाएंगे। हम आपको कंपनी चेंज नहीं करेंगे, हम आपका पैकेज चेंज नहीं करेंगे, हम आपको नॉलेज देंगे, उसके बदले आपको मार्केट में इंटरव्यू देना है।
We have separate HR team for resume modification, resume uploading in LinkedIn, Naukri, and जहां भी रिक्वायरमेंट आएगा वहां पे CV भेजने के लिए। किसी का कोई और डाउट हो? अच्छा, अभी क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है? नेक्स्ट सैटरडे। ओके, फ्रॉम मतलब यही वाले टाइम पे 10? नहीं, 8 से 10। ओके। सर ट्रेनिंग फीस क्या रहेगी? अभी जो चल रहा था 4G 5G इसी का रहेगा ट्रेनिंग। हाँ, मतलब फीस के लिए मेरे को डायरेक्ट कॉल करो। ओके सर। है ना, जो भी फीस है उसको हम 2 से 3 पार्ट में लेंगे, वन टाइम नहीं लेंगे। कितना रिलैक्सेशन देते हैं। किसी को कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरा, किसी को कुछ डाउट है कि मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मेरे को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, इस टाइप का है किसी को? सर मैं ये करता होगी कैसे उस पे होगी पे या इसी पे गूगल मीट से होगी ऑनलाइन, ये पूछ रहा था। गूगल मीट में भी हो सकती है और टीम्स में भी हो सकती है। ओके 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 फाइन। कोई भी एक प्लेटफॉर्म रहेगा जो कंटिन्यू चलेगा। हाँ ठीक है सर। और कोई किसी का डाउट? सारा कुछ क्लियर है? विराट जी आपका है कुछ? रिगार्डिंग एक्सपीरियंस जो आप बता रहे थे उसके कुछ हाईलाइट कर सकते हैं क्या? क्योंकि एक्चुअली में हमारा एक्सपीरियंस जो है वो 10+ हो चुका है, तो क्या कंपनी एडॉप्ट करेगी? मैंने अभी एक बंदा प्लेस किया है जो 23 से 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टेलीकॉम। ठीक है, वो सीनियर प्रोग्राम मैनेजर प्रोफाइल पे गया है बंदा। तो यहाँ पे एज का कोई लिमिट नहीं है और पैकेज का कोई लिमिट नहीं है। मैटर करेगा जस्ट नॉलेज, कितना आपके पास है। बेस्ड ऑन नॉलेज ही ये चल रहा है मार्केट में। आपको ये हो सकता है कि आपका अगर 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि सामने वालों को भी लगे कि आप 15 साल 18 साल 20 साल के एक्सपीरियंस है, तो उनका एक्सपेक्टेशन भी रहेगा कि उतना लेवल का नॉलेज हो। जैसे मेरे 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका उसमें से कितना पार्ट उसमें से आप इसका दिखाएंगे? 17 में मैं आपका 2 से 3 साल दिखाऊंगा मैनेजमेंट में। उसके पहले आप टेस्टिंग में थे, उसके पहले 2-3 साल आप टेस्टिंग में थे, उसके बाद प्रीवियस आपका जो था एज इट इज रहेगा। टेस्टिंग प्रोफाइल का नॉलेज हो जाएगा तो आप बता सकते हो कि मैं मैनेजमेंट देख रहा था, प्रोग्राम मैनेजर था या प्रोजेक्ट मैनेजर था। अभी जितने लोग जा रहे हैं सब इसी से जा रहे हैं, ऐसा ही करके जा रहे हैं। हम लोग का भी ऐसे रहेगा वहाँ पे एक एक करके। हाँ बोलिए। विराट जी कुछ बोल रहे थे आप? विराट जी आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया मेरा। मतलब मैं भी वही पूछना चाह रहा था, जैसे 11 साल का एक्सपीरियंस हम लोग का भी है, तो लाइक भी वैसे ही चलेंगे फिर? हाँ आपका भी, आपका 2-3 साल का दिखाएंगे जो टेस्टिंग में हो आप। ओके, और लाइक मैनेजमेंट का हम लोग का नहीं दिखाएंगे, जो भी आप मैनेजमेंट का हम लोग भी उस पे हम 2 से 3 साल दिखाएंगे कि आप टेस्टिंग में कर रहे थे। और अगर आप जियो से हैं तो वेल एंड गुड है, जियो में सारा चीज होता है। ठीक है, रिसेंटली अभी 4 बंदे प्लेस किए हैं मैंने, जिसमें एक MP से है, एक UP से, 2 बंदे दिल्ली से हैं। 8-9 का पैकेज था उनका, तो 15, 16, 17, 18
एक बंदे को 20 व्यू मिला है 9.5 वाले को, और इसके पहले जो प्लेस किए थे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, 17 साल 18 साल 19 साल 20, उनको 40 लाख 42 लाख 21 लाख का पैकेज था एक बंदे का, उसको भी 40 लाख का पैकेज मिला। पर बंदे मेहनत करते हैं, 3-4 महीने जिसने मेहनत कर ली उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जो नहीं करेगा नहीं होगा, सिंपल है। अच्छा, इसमें जो आप मुझे स्क्रम मास्टर का आपने जो मेरे को हिंट दिया था, वो अगर इसमें मैनेजमेंट थोड़ा सा दिखाते हैं देन स्क्रम मास्टर इंपॉर्टेंट होगा, राइट? यस, मैं एक एक स्टेप आपको गाइड करूंगा, ठीक है, एज पर योर एक्सपीरियंस, क्या आपको एड ऑन साथ में कर लेना है, क्योंकि ये बाकी की जो जैसे स्क्रम है वो 1 महीने या 2 महीने का नहीं है, 3 महीने का, वो 2 दिन का प्रोग्राम है। ओके, बहुत लंबा नहीं, 4 से 6 घंटे का सैटरडे एंड संडे का है, उसके बाद एग्जाम दे दो, हो गए स्क्रम मास्टर, बन गए प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। हाँ, मतलब उसका सर्टिफिकेशन कोई मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है क्या, लाइक बहुत टफ नहीं है क्या, इजी मतलब हो जाता है? 4 घंटे का वीडियो है, उसको देख के आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। ओके, एससीएम, और उसमें एक अटेम्प्ट नहीं है, 3 अटेम्प्ट है। नाइस। और अगर खुद से निकालने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, विल प्रोवाइड सपोर्ट। ओके, कि लगेगा कि फेल हो जाऊंगा, पैसे चले जाएंगे, विल सपोर्ट ऑन दैट पार्ट आल्सो। कूल, थैंक यू। एससीएम का कोर्स कितना रहता है? किसका? एससीएम सर्टिफिकेशन का? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन सा सर्टिफिकेशन का? सीएसएम सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, सीएसएम होता है वो। ये टेस्टिंग वाला सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो क्या? स्क्रम मास्टर तो ये 25 से 30 हजार है आई थिंक। ओके, एंड अगर हम जी अभी आपके हमने ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका भी कोई सर्टिफिकेट है? भाई सर्टिफिकेट चाहिए तो दे देंगे, सर्टिफिकेट में क्या है कि हमने आपको ट्रेनिंग दी है। ओके, नहीं बस पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए। नहीं, इस सर्टिफिकेट का वैसे कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपको चाहिए तो दे देंगे, क्योंकि ये कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है। जैसे हम CCNA करते हैं तो सर्टिफाइड हो जाते हैं, कंपनियां नो डाउट कंपनियां सर्टिफिकेशन कराती हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, कुछ प्रोजेक्ट में सर्टिफाइड टेस्ट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होता है, वो कंपनी कराती है खुद ही। ओके, और किसी का कुछ है क्या? सो आई थिंक किसी का कुछ नहीं है। मंगेश जी आपका है कुछ? नहीं, मैंने ऑलरेडी पूछ लिया। ओके, सो whoever is interested, get registration in next 3 days, Monday, Tuesday and Wednesday. We'll start from Saturday morning 8 AM to 10 AM, right? फीस के लिए आप मेरे को डायरेक्टली पिंग करें, मैं आपको व्हाट्सएप में सारा इंफॉर्मेशन देता हूँ कैसे करना है। So I think we have to close this meeting. Right? हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बोलो। मैं कह रहा हूँ सर, क्लासेस सैटरडे संडे को चलेगी या फिर पूरे वीक में चलेगी? Saturday and Sunday, because our trainer is belongs to MNC. No more enough time in Monday to Friday. मंडे से फ्राइडे में आपको 2 घंटे पढ़ना है। So we can close the meeting. Okay? अगर आपका कुछ अभी भी रह गया हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। Thanks guys for attending
और Thank you. demonstration. Okay, sir. Thanks for. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.